इंडिया रंग बिरंगी डाइवर्सिटी का देश अक्सर दो अलग दुनियाओं जैसा लगता है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच का कंट्रास्ट इतना स्ट्राइकिंग है कि यह एक ही देश के दो हिस्से नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनिया लगते हैं। ऊंचे हिमालय से लेकर साउथ के सनी बीचेस तक ज्योग्राफी में जमीन आसमान का फर्क है। नॉर्थ इंडिया की टावरिंग माउंटेन्स और साउथ इंडिया की सीरीन कोस्टलाइंस दोनों ही अपने अपने तरीके से मेस्मराइजिंग हैं। ये डिफरेंसेस सिर्फ लैंडस्केप्स तक ही नहीं, कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में भी दिखते हैं। नॉर्थ इंडिया की वाइब्रेंट फेस्टिवल्स और साउथ इंडिया की रिच ट्रेडिशंस दोनों ही रीजन्स की कल्चरल टेपेस्ट्री को यूनिक बनाते हैं। यह ऐसे नॉर्थ और साउथ इंडिया के फैसिनेटिंग डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करता है, उनके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्यूएंसेस को समझने की कोशिश करता है। नॉर्थ इंडिया के बसलिंग मार्केट्स और साउथ इंडिया के ट्रैंक्विल बैकवाटर्स दोनों ही रीजन्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शेप करते हैं। नॉर्थ अपने हिस्टोरिकल सिटीज और फर्टाइल प्लेन्स के साथ कई एम्पायर्स का जिया रच रहा है और एंशिएंट सिविलाइजेशंस का क्रेडल। यहाँ की हिस्टोरिकल रिचनेस और आर्किटेक्चरल मार्वल्स जैसे कि दिल्ली का रेड फोर्ट और आगरा का ताजमहल विजिटर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साउथ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से घिरा रिच मैरिटाइम हिस्ट्री और पावरफुल किंगडम्स की लेगेसी का दावा करता है। यहाँ के एंशिएंट टेम्पल्स और कोस्टल ब्यूटी जैसे कि केरला के बैकवाटर्स और तमिलनाडु के फिशरमैन साउथ इंडिया की कल्चरल और हिस्टोरिकल रिचनेस को दर्शाते हैं। इन हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस ने दोनों रीजन्स के सोशल फैब्रिक और कल्चरल ईथोस पर गहरी छाप छोड़ी है। नॉर्थ और साउथ इंडिया के वाइब्रेंट फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस फॉर्म्स दोनों ही रीजन्स की कल्चरल आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। ये डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज ही हैं जो इंडिया को एक ट्रूली डाइवर्स और फैसिनेटिंग देश बनाते हैं। Internal migration, modern India ka ek defining phenomenon, has been shaping the country's socio-economic fabric for decades. People from various regions, driven by aspirations and dreams, embark on journeys to new places, hoping to find better opportunities and improve their living standards. This movement is not just a recent trend, but has deep historical roots, reflecting the dynamic nature of India's population. North or South India के social or economic landscapes पर significantly impact डाला है. The cultural exchange between these regions has enriched the diversity of the nation, creating a unique blend of traditions and modernity. Festivals, cuisines and languages from different parts of the country intermingle, showcasing the unity and diversity that India is known for. Better opportunities की तलाश में लाखों लोगों ने regional borders पार किए हैं, seeking not just jobs, but also a sense of belonging and community. This mass movement has led to the growth of urban centers, transforming small towns into bustling cities. The journey, however, is often fraught with challenges, as migrants navigate new environments and adapt to different cultures, employment, education, or better quality of life की तलाश में. Young students move to cities with better educational institutions, while families relocate to provide a brighter future for their children. The promise of a stable job and a higher standard of living drives this continuous flow of people, reshaping the demographic landscape of the nation. Your movement, economic growth को बढ़ावा देने के साथ-साथ unique challenges भी लाया है. While cities benefit from the influx of skilled and unskilled labor, they also face the pressure of providing adequate infrastructure, housing, and services to the growing population. The rapid urbanization has led to the expansion of markets, construction of new buildings, and the rise of new business opportunities. Migrants' influx, mainly north to south की ओर, has been a significant driver of economic activity. The southern states, with their booming industries and tech hubs, attract a large number of migrants seeking better employment prospects. This movement has not only fueled the growth of these regions, but also created a more interconnected and interdependent economy. South में industries की growth को fuel किया है. The manufacturing and IT sectors in particular have seen exponential growth due to the availability of a diverse and skilled workforce. Factories and tech parks are bustling with activity, contributing significantly to the GDP and overall development of the country. Bangalore और Hyderabad जैसे cities में IT sector का boom इस migration-driven economic growth का एक example है. These cities have become global IT hubs, attracting talent from all over the country and even abroad.
The success stories of startups and established tech companies highlight the positive impact of migration on innovation and economic progress. However, इस influx ने resources के लिए competition और social tensions भी पैदा किए हैं, as cities struggle to keep up with the growing demands. The competition for jobs, housing, and basic amenities can lead to conflicts and social unrest. It is crucial to address these issues through effective planning and inclusive policies. Inclusive development policies की ज़रूरत को highlight करते हुए, ensuring that the benefits of migration are shared equitably and that the challenges are managed effectively is essential for sustainable growth. Community development projects, political engagement, and social initiatives play a vital role in fostering harmony and building a more inclusive society. लिटरेसी रेट्स और इकोनॉमिक प्रोग्रेस नॉर्थ और साउथ इंडिया की तुलना करते समय एक कंट्रास्टिंग पिक्चर पेश करते हैं। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच का अंतर केवल जियोग्राफिकल नहीं है, बल्कि यह सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल डिमेंशंस में भी देखा जा सकता है। साउथ, खासकर केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स कंसिस्टेंटली हायर लिटरेसी रेट्स रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को एजुकेशन और स्किल्स से एम्पावर करते हुए। यहाँ की सरकारों ने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी है, जिससे यहाँ की यूथ को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एजुकेशन पर इस एम्फेसिस ने एक मोर स्किल्ड वर्कफोर्स और थ्राइविंग सर्विसेज सेक्टर को जन्म दिया है। साउथ इंडिया के सिटीज जैसे बेंगलोर और हैदराबाद ग्लोबल आईटी हब्स के रूप में उभरे हैं, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स और क्रिएटिंग जॉब्स। इसके उलट नॉर्थ, हालांकि रिसेंट ईयर्स में प्रोग्रेस कर रहा है, लिटरेसी रेट्स में अभी भी पीछे है। यहाँ की रूरल एरियाज में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की कमी है, जिससे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। एजुकेशन लेवल्स में इस डिस्पैरिटी ने कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ की इकोनॉमी अभी भी लार्जली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति धीमी है। हाउएवर, नॉर्थ में इमेंस पोटेंशियल है, स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस और ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ। अगर यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जाए और यूथ को स्किल्स और ट्रेनिंग दी जाए, तो यह रीजन भी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देख सकता है। नॉर्थ और साउथ इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप आइडियोलॉजीज, पार्टी एफिलिएशंस और गवर्नेंस मॉडल्स में स्टार्क डिफरेंसेस दिखाता है। नॉर्थ ट्रेडिशन में स्टीप्ड अक्सर नेशनल पार्टीज की ओर झुका है, जो मोर कंजर्वेटिव आउटलुक रखते हैं। साउथ अपने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के हिस्ट्री के साथ रीजनल पार्टीज का उदय देखा है, जो सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। इन कॉन्ट्रास्टिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ने दोनों रीजन्स के डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरीज को शेप किया है। जहां नॉर्थ ने लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस देखा है, वहीं साउथ ने सोशल वेलफेयर स्कीम्स और एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज किया है। रिलीजियस कन्वर्जन्स इंडियन सोसाइटी का एक सेंसिटिव और ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों में एक डिस्टिंक्ट रोल प्ले किया है। वाइल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी देता है, कन्वर्जन्स वॉलंटरी और फोर्स्ड दोनों डिबेट्स और कई बार सोशल फ्रिक्शन को स्पार्क किया है। नॉर्थ में कन्वर्जन्स अक्सर हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे मुगल पीरियड और ऑनगोइंग मिशनरी एक्टिविटीज से लिंक किए गए हैं। साउथ में कन्वर्जन्स सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, खासकर लोअर कास्ट्स में कास्ट सिस्टम से लिबरेशन की तलाश में से ड्रिवन हुए हैं। कन्वर्जन्स के हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट्स को समझना रिलीजियस हार्मनी को फॉस्टर करने के लिए क्रूशल है। फूड कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच फैसिनेटिंग डाइवर्सिटी शोकेस करता है। नॉर्थ अपने रिच बटरी करीज और मीट बेस्ड स्टेपल्स जैसे रोटी और नान के लिए जाना जाता है। मुगल कुलिनरी ट्रेडिशंस का इन्फ्लुएंस रिफ्लेक्ट करता है। साउथ अपने कोस्ट लाइन के साथ सी फूड रिच क्विजीन का दावा करता है, जबकि राइस स्टेपल फूड के रूप में सेंटर स्टेज लेता है। कल्चरल नॉर्म्स भी सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं। नॉर्थ अपने पेट्रियार्कल सोसाइटल स्ट्रक्चर के साथ अक्सर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को एडहियर करता है। साउथ जबकि पेट्रियार्की से डिवॉइड नहीं है, वुमेन्स एम्पावरमेंट और सोशल मोबिलिटी में ग्रेटर प्रोग्रेस देखा है। अपने डिफरेंसेस के बावजूद नॉर्थ और साउथ इंडिया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड बाय शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर
और इंडिया के डेस्टिनी से। इस डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट करना, साथ ही यूनिटी को फॉस्टर करना इंडिया की प्रोग्रेस के लिए पैरामाउंट है। नॉर्थ और साउथ म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं, दोनों नेशंस ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट करते हैं। नॉर्थ अपने वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड्स के साथ फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, जबकि साउथ अपने इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव करता है। रीजन्स के बीच कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन इंडिया के ट्रू पोटेंशियल को ग्लोबल स्टेज पर अनलॉक करने के लिए एसेंशियल है।